अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इमसाल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details. मेडीगड्ढा बैरेज से रियासती हुकूमत को 800 करोड़ रुपए का फायदा होने की इत्तलात मिल रही हैं। मेडीगड्ढा की रेत की फरोख्त से ये आमदनी होने का इम्कान है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का हिस्सा मेडीगड्ढा बैरेज है। इस बैरेज के सुतून के धंस जाने से बड़े पैमाने पर रेत बाहर आई है। हुकूमत ने 40 ब्लॉक्स के हर्राज का फैसला किया है। जुलाई के पहले हफ्ते में ये हर्राज मुकम्मल कर लिया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर के तौर पर ओम बिरला मुंतखब करार दिए गए। निदाई वोट से उनका इंतखाब अमल में आया। 18वीं लोकसभा में स्पीकर के ओहदे के लिए बीजेपी के ओम बिरला और कांग्रेस के कोडी कर्नल सुरेश के दरमियान गैर मामूली मुकाबला देखने में आया। एनडीए और अपोजिशन की जमातों के इंडिया ग्रुप के दरमियान इत्तेफाक राय ना हो सका। वज़ीर आज़म मोदी ने बिरला को लोकसभा स्पीकर के तौर पर मुंतखब करने की तहरीक पेश की। सुरेश को स्पीकर के तौर पर मुकर्रर करने की तहरीक शिवसेना के MP अरविंद सावंत ने पेश की। इससे पहले 25 जून को कांग्रेस ने ऐलान किया था कि राहुल गांधी लोकसभा में अपोजिशन के लीडर होंगे। by Sri Narendra Modi and seconded by Sri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favour may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. कांग्रेस कायद राहुल गांधी से हमीदुल्लाह सैयद की क़यादत में लक्षद्वीप के कांग्रेस के वफद ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। वेलकम। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं इतनी देर नहीं आया हूं। ये मेरी गलती है, थोड़ा मैं मतलब बिजी रहा, मगर अब मैं आऊंगा। If you want me to come back with you, I'll come back with you right now. I believe that this Praful Patel is really disturbing your life. What is he doing? Sir, our people is facing many difficulties in all the fields in this Praful Koda Patel and BJP government. And our land grabbing is the most important issue the people facing. And another reason. And who is grabbing this land? For the corporates, sir. For the corporates? For the corporates. Who? Gujarat-based mafia. Gujarat-based. So all Gujarati corporates. Yeah. Are they taking it on lease or what? Are they just taking it outright? No. Freehold. Without any compensation. They are grabbing the land from the residents. In the name of the tourism and the 5 more major islands, it is done in the name of tourism. We are not opposing the tourism development. Sir, Congress was instrumental in bringing tourism when late Rajiv Gandhi ji was there.
He was instrumental in bringing Bangaram to the limelight, and it was opened up for tourism, and people used to come, both domestic and foreign tourists used to come, they used to enjoy, and there was revenue generation for the local, job employment opportunities for the local, and also people could come and explore the islands. We were not averse to that. Even today it was brought by Congress, we are welcoming it, but not at the cost of the ecology and the culture and the tradition. Meaning people of Lakshadweep should also benefit from it. It should not be that people of Lakshadweep are allowing tourism and then somebody else is taking all the benefit and you're just looking. So if anything, it should be a fair partnership. No? Yes. Sir, another issue is a mass disengagement of around 3,000 youths are disengaged from various firms. Contractual employees. They've been removed. Yes, they were removed. Last 2 years, around 3,000 more youths are disengaged from there. Okay. That is hit our economy. Sir, there is an amendment brought in the parliament with regard to this acquisition of land. Land tenancy regulation was brought in 1965. There was an amendment which was brought by BJP government in the parliament, which says that any transaction that happens in the Pandaram land, either sale or purchase of land, will be valid and it will be validated by virtue of this amendment. Earlier, there was no sale purchase transaction. That was not legal, that was void ab initio. So, but that was reversed, and local administrator has not issued any rules pertaining to the implementation of that amendment that was brought in the parliament. So now you're there, so you can raise these issues. We can also help you raise them. रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने दिल्ली में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदरनशीन संतोष कुमार यादव से मुलाकात की। इस मौके पर रियासत में कौमी शाहराहों के ज़ेर इल्तवा मसाइल पर बातचीत की गई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 साल से कौमी शाहराहों की तामीर में सुस्त रफ्तारी की वजह से हादसात पेश आ रहे हैं। इस जानिब संतोष कुमार को तवज्जो दिलाई गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस ने हलफ बर्दारी के मौके पर फ़लस्तीन के रिमार्क्स पर बाज़ अरकान के एतराज़ पर रद्द अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि इन अरकान को जो करना है करने दीजिए, वो भी दस्तूर जानते हैं, इस तरह की धमकियाँ उन पर काम नहीं करेंगी। There is a clamor asking for apology from you and also clamor to unseat you. There are also... Let them do whatever they want. I also know a little bit of constitution. These empty threats will not work on me. But there are Demanding your apology, sir. Obviously, there are rules and guidelines. गुरुकुल टीचर्स ने अपने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज के सिलसिले में इन असातिज़ा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर अपने मसाइल के हल को यकीनी बनाने पर जोर दिया। रैतु भरोसा स्कीम के निफाज के लिए तेलंगाना में आज से ज़र अराज़ियात का सर्वे शुरू किया गया है। ये सर्वे महकमा ज़राअत के अहदेदारों की जानिब से किया गया है। ये फ़ैसला किया गया कि जो लोग काश्त कर रहे हैं उनकी तफसीलात इकट्ठा की जाएं और इस सर्वे के दौरान किसानों की तफसीलात हासिल करते हुए उनको बीमा की रकम फराहम की जाए। अलमकुंडा, करीमनगर, खम्मम, कामारेड्डी, संगारेड्डी और दीगर इलाकों में तजुर्बाती बुनियादों पर यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। TNGOs के सिटी सदर SM मुजीब हुसैनी ने सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की यकीन दहानी पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। TNGOs की आमिला का इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में मसाइल के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करने का फ़ैसला किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तेलंगाना NGOs सेंट्रल यूनियन में तेलंगाना NGOs के सदर जनाब जगदीश्वर साहब के सदारत में तेलंगाना JAC का आज मीटिंग हुई
और इसमें करीब 40 यूनियन ने हिस्सा लिए। गेस्टेड ऑफिसर्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंटरमीडिएट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एससी डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, बहरहाल पूरे लोग आज सरकारी मुलाजिमीन का कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग का जायज़ा भी लिए इस इजलास में। और करीब 3 घंटे मीटिंग चली और हमारे रियासत के वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर साहब जनाब रेवंत रेड्डी साहब का भी शुक्रिया अदा किए। पहली पर सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह आ रही है। इसके अलावा जो रियासत में मसाइल है, मसले है, बहुत ज़्यादा है, तो आपके ज़रिए से आज रिक्वेस्ट की गई कि जल्द से जल्द ये मसलों को हल करने की बात की गई और 3-4 दिन में चीफ सेक्रेटरी साहिबा को मिलकर ये जो भी 18 डिमांड्स रखे वो भी इंशाल्लाह हम दे देंगे। उसके बाद में फिर हुकूमत से हमारा मुतालबा है जो बिल सरकारी मुलाजिमीन के रुके हुए हैं वो फिलफौर उसको क्लियर करने की बात की गई। 4 DA पेंडिंग हो गए, उसको भी इमीडिएट देने की बात की गई। हेल्थ कार्ड नहीं चल रहा है, हेल्थ कार्ड के लिए वो भी हेल्थ कार्ड इफेक्टिव सिस्टम से चलना बोलकर वो उसकी भी बात की गई। 3170 में जो सरकारी मुलाजिमीन परेशानी में है, जो देहातों को ट्रांसफ़र कर दिए, तो उसके लिए भी 2018 से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, 2018 से उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। और सीनियरिटी का जो है, सीनियरिटी को बचाने की भी बात की गई। सीनियरिटी को देखकर सरकारी मुलाजिमीन का ट्रांसफ़र होना चाहिए, ट्रांसफ़र्स की भी बात की गई। बहरहाल कई मसाइल पे बात हुई। और जो सरकारी मुलाजिमीन मेडिकल इन्वैलिडेशन, मतलब किसी वजह से कैंसर है या हार्ट पेशेंट्स है तो रिटायरमेंट ले लिए, तो उनके अफराद ख़ानदान में किसी को तो भी एक को गवर्नमेंट नौकरी देना है, मगर सेक्रेटरी उसका नहीं होने की वजह से पिछले करीब ये हुकूमत आई जब से, उससे पहले से भी 1.5 साल से वो रुके हुआ है, तो फिलफौर उसकी भी कार्रवाई करने की भी रिक्वेस्ट की गई। बहरहाल दीगर चीज़ों के लिए भी सरकारी मुलाजिमीन, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ फिर से एक बार JAC के मुत्तहिद हो रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर सरकार हमारी बात अगर नहीं सुनेंगी तो फिर दीगर चीज़ों पे भी सोचना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। OU-ACP जगन ने रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग करते हुए उन्हें गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि गैर समाजी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर में जराइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए पुलिस चौकस हो गई है। रात में गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर आवारागर्दी करने पर भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। तेलंगाना के हाजियों ने सफ़र मुक़द्दस के दौरान हज कमेटी की जानिब से नामुनासिब इंतज़ामात की शिकायत की है। इस सिलसिले में बाज़ हाजियों की वीडियोज़ भी सामने आई हैं जिसमें इन तकालीफ का तफसीली तौर पर तज़किरा किया गया है। पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने पार्लियामेंट में उर्दू ज़बान में हलफ लिया। वो उत्तर प्रदेश के रामपुर से मुंतखब हुए। पार्लियामेंट के लिए पहली मरतबा मस्जिद के इमाम का इंतखाब हुआ। मैं मुहिबुल्लाह, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के बमूजिब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा और उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फ़राइज़ वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। श्री ज़ियाउर रहमान। अमेरिका के डलास में फायरिंग के वाक़े में AP के शख्स की हलाकत के वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 21 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया।
मकतूल की शिनाख्त बापटला के 32 साल गोपी कृष्णा के तौर पर की गई है, जो एक स्टोर में मुलाजमत करता था। स्टोर में लूट के वाक़े में इसको गोली मारकर हलाक कर दिया गया। जिला मुलग में रेत के लोड के साथ जाने वाली लारियों को रोककर बाज़ अफराद की जानिब से रकम वसूल की जा रही है। ये वाक़या ज़िले के वेंकटपुरम मंडल में पेश आया। रकम ना देने पर लारी ड्राइवर्स पर हमला करते हुए उन्हें ज़ख्मी करने की भी शिकायत मौसूल हुई है। जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर वाक़ कपड़ों के शोरूम में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग लगते ही इमारत में धुआं फैल गया, जिसके साथ ही वहां मौजूद अफराद जान बचाने के लिए इमारत से निकल गए। शोरूम में काम करने वालों में इस वाक़े के साथ ही अफरा तफरी मच गई। 50 मुलाजमीन इस स्टोर में काम करते हैं। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। ఈరోజు సాయంత్రం సుమారు 6:30 ప్రాంతంలో రోడ్ నెంబర్ 36 జూబ్లీ హిల్స్ అండ్ ఇక్కడ పిల్లర్ నెంబర్ వచ్చేసి 1138 దగ్గర ఫ్యాబ్ ఇండియా ఉన్న స్టోర్ ఉంది. ఇది గ్రౌండ్ ప్లేస్ 5 అంతస్తుల గల స్టోరు. ఇందులో ఫ్యాబ్ ఇండియా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో కూడా 2 భాగాలు, ఒక మెజనైన్ అండ్ గ్రౌండ్ ఉంది. సో గ్రౌండ్లో ఎటువంటి ఫైర్ లేదు, మెజనైన్లో ఫైర్ ఉంది. వాళ్ళకి స్టోర్ చేసిన దాంట్లో ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కానీ తర్వాత ఫ్యూజ్ బాక్సుల నుంచి ఫైర్ అయిందని ప్రాథమిక భావన. సో సమాచారం అందిన వెంటనే జూబ్లీ హిల్స్ ఫైర్ స్టేషన్ మరియు పంజగుట్ట అధికారులు సిబ్బంది అందరూ రంగంలోకి దిగడం జరిగింది. సో ఫైర్ను ఇమ్మీడియట్గా కంట్రోల్ చేశాము. ఓన్లీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ వరకే ఉంది. అండ్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ అది ఓన్లీ మజనైన్, అంటే చజ్జాలాగా ఉంటుంది. సెకండ్ ఫ్లోర్ నుంచి ఫైర్ ఏమాత్రం లేదు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటే ఫైర్ ఆల్మోస్ట్ 90% ఫైర్ కంట్రోల్ అయిపోయింది. అయితే ఈ దశలో ఇందులో ఉన్న పనిచేసే వాళ్ళు కానీ పైన ఉన్న సిబ్బంది కానీ అందరూ కూడా సేఫ్గా ఎవాక్యుయేట్ అయ్యారు. సో మిగిలిన ఫైర్ వెంటిలేషన్ లేకపోవడంతో ఫైర్ కొంచెం టైం పడుతుంది. బట్ ఎనీవే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్టింగ్విష్, 90% ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విష్ అయింది. మరొక హాఫ్ అన్ అవర్లో పూర్తి స్థాయి అగ్నిని సమర్థవంతంగా నియంత్రిస్తామని మేము భావిస్తున్నాం. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बालापुर पुलिस ने उसके हुदूद के तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मंदी हाउस और पान शॉप के अलावा दीगर दुकानात के मालिकीन को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। पुलिस स्टेशन में हुई इस काउंसलिंग में रात देर गए तक होटल्स को खुले रखने के खिलाफ इंतबाह दिया गया। पुलिस ने 11 बजे तक दुकानात और रेस्टोरेंट्स को बंद करने की हिदायत दी। वन 1930 कॉल करना। तुम रेलवे स्टेशन पे रहने दो, बस स्टेशन पे रहने दो, बस पे रहने दो, ट्रेन पे रहने दो, वॉशरूम में रहने दो, सेल फोन में इमीडिएटली 1930 कॉल करना। ये 1930 टोल फ्री नंबर, इंडिया का टोल फ्री नंबर, उनको पूरा लैंग्वेज आता। पैसे थोड़ा मिलते, होल्ड होते पैसे, अच्छा है ना। फिर नेक्स्ट ये फेसबुक में, ये बुक में, एक बार क्या करते हैं, एक वीडियो कॉल आता, वीडियो कॉल व्हाट्सएप में वीडियो कॉल आता। फॉर एग्जाम्पल इनका नाम फीड करें आप, इनका नाम से वीडियो कॉल आता आपको, क्या करते हैं, अरे इनू आपका नाम भैया अहमद, अहमद वीडियो कॉल आता। आप क्या करते हैं, उठाते फोन, उठा के क्या करते, देखते हैं ना इधर कौन रहते, लेडी, लेडी न्यूड बोलते, कपड़े पूरा ना इनको ऐसा रहते। तुम क्या करते, देखते ना, पहले तो देखते ना,
खत्म। इनके पास स्क्रीनशॉट लेते, हमारा फोन पे क्या है, कितना कॉन्टैक्ट है, पूरा इनके पास रहते। क्या करते बाद में, क्या करते भाई, ब्लैकमेल, इतना पैसा डालो नहीं तो तुम्हारा कितना मेंबर्स है इतना मेंबर्स को डाल दो। अभी औरत देखते क्या 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 दिखती, क्या मालूम होती इनको, अरे दोनों मिलके बात करे, ऐसा सुसाइड करे भाई थोड़ा आदमी, ऐसा टेंशन होते। नो टेंशन, ऐसा गुड़ा नहीं, कॉल आते इमीडिएटली डायरेक्ट लिफ्ट करके, ये सामने कैमरा रहते ना, ये बंद करके देखो, ऐसे देखो पहचानता वाला बात कर सकते हैं। और नहीं, फोन उठा के ऐसा देखो, इधर लगाओ फोन, फोन इधर लगाओ कैमरा, ऐसा देखो, हाँ पहचानता वाला बात कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ा घर पे கூட बोलो, मैं क्या बोलूं, घर वाला को बोलो ऐसा ऐसा हो गया अभी फ्रॉड्स। और लेडीज को దాన్ని ఏమంటారు, मॉडिफाई, इनका फोटो, एक फोटो लेके दूसरा हीरोइंस का यूट्यूब में नेट में मिलते, ये ज्वाइन करके ये ब्लैकमेलिंग, जरूरत नहीं, डर नहीं, कुछ भी नहीं, जाके सीधा साइबर क्राइम में कंप्लेन कर सकते, पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर सकते। 10 मिनट का काम है पुलिस को, ये पूरा डिलीट कर सकते। क्या करते लेडीज नहीं बोलते, डर को क्या करते, पैसा इन्हों ब्लैकमेल करते, इतना डालो नहीं तो तुम्हारा हस्बैंड को डालता हूँ, तुम्हारा फ्रेंड्स को डालता हूँ, ऐसा डालता हूँ, ब्लैकमेल करते। डरना को डर जरूरत है नहीं, सीधा पुलिस स्टेशन जा सकते, साइबर क्राइम PS को जा सकते, ये डिलीट करते, कुछ भी नहीं, ठीक है। शहर में पुलिस की चौकसी का सिलसिला जारी है। पुलिस ने रात में पेट्रोलिंग में भी इजाफा कर दिया है। दुकानात को 10:30 बजे शब बंद करवाया जा रहा है। इसी के हिस्से के तौर पर कल शब सईदाबाद पुलिस ने चंपापेट, संतोष नगर, चादरघाट, मलकपेट, सईदाबाद और आसपास के इलाकों में खुसूसी मुहिम चलाई। पुलिस ने होटल, पान शॉप्स, फास्ट फूड सेंटर्स को बंद करवाया। MBNR चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई। कल रात चलाई गई इस मुहिम के दौरान चंद्रायन गुट्टा और बुंडलागुड़ा पुलिस मुलाजमीन ने नामुनासिब दस्तावेजात, नामुनासिब नंबर प्लेट्स पर कई गाड़ियों को जब्त कर लिया। बंडलागुड़ा की हुदूद में पुलिस ने इस्माइल नगर में गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई। कल रात चलाई गई इस मुहिम में पुलिस के मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लेते हुए नामुनासिब दस्तावेजात और नामुनासिब नंबर प्लेट्स पर कई गाड़ियों को जब्त कर लिया। बेगमपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त उस्मान के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि कातिलों ने पहले उन्हें मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। शहरियों ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ख्वाहिश की कि वो बेगमपेट पुलिस के इस वाक़े के लिए जिम्मेदार अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। क्या बोले पुलिस वालों को, साहब मेरे बच्चे के साथ जुल्म हो रहा, गला काट तुम हो रहा, कल के दिन कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार है क्या साहब बोलते। PS में आके कंप्लेंट लिखा 10 को केस करा। अब वो केस होने के बाद पूरा होने के बाद हमारा बच्चा टिफिन लेके घर को आ रहा था, उसको ले आके रोड पे मार दिए। 8 जने मिलते हमारे बराबर, पुलिस वाले बाहर के 4 पोटे है, उसमें से एक पोटा और साहिल रैन के घर में रहता था पोटा, वो पोटा भी 4 बजे मारने को गया करते। 4 बजे मारने का हमारा भाई 4 बजे मैं फ़ोन करा, मेरा नंबर फोन दो। 4 बजे मैं फ़ोन करा, मैं नहीं उठा, मैं बिजी में था, फ़ोन नहीं उठा उसका कॉल। उन्हें कहीं के लिए करा नहीं हुआ, फिर रिटर्न करने के लिए गया मैं अभी जस्ट 11 बजे खाने खाने के लिए आया। आते कि मेरा दोस्त फ़ोन करा, भैया तुम्हारे भाई का इंतकाल होगा, डेड बॉडी को मर्डर कर दिए इधर बोल के उनको बोल दिया। देखो 4 बार कॉल करा, 6 बार कॉल करा मेरा, कहीं को करा बोल के मैं रिटर्न करेंगे बोल के घर पर जाके मिल लिए तो बात बराबर होती बोल के मैं आया। उसके लिए इसका केस हो ये हो गया। पुलिस वाले जो है एक्शन नहीं लिए, जैसी बच्चे की जान चली। अगर पुलिस वाले जो है जाके ग्राउंड मार के आते, वार्निंग देते, तो बच्चा हमारे सामने बीच में रहता था, सही सलामत रहता था। पुलिस वालों की कायली की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चलेगी।
जबकि 2 घंटे पहले आपको पीएस में आके कंप्लेंट पूरी राम कहानी सुना के गए सो है। लेकिन पुलिस वाले जो है ना एक्शन नहीं लिए उसके ऊपर। एक्शन नहीं लेने की वजह से बच्चे की जान चलेगी। 8 से 4 आदमी मिले। 8 कौन कौन थे? एजाज, फेरोज, साहिल, रेहान, 4 थे। एजाज मारा मेरे भाई को, एजाज छुरी से मारा है मेरे भाई। इल्म नुजूम के नाम पर सादा लो अफराद को धोखा देने वाली टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जनगांव ज़िले के कोड़ा कंडला इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छुपे हुए ख़जाने और नुजूम के नाम पर एक ख़ानदान को खौफजदा करते हुए भारी रकम वसूल करने वाली इस टोली को गिरफ्तार कर लिया। इस ख़ानदान की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इन साल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details.